Hello everyone, welcome to Nursing with Priya. And in today's lecture, we will study about the body membranes and body glands present in our body. So, the first topic is about the membranes. So, let us first understand कि membrane होता क्या है. Membrane जो है is a thin layer of sheet which is made up of epithelial cells. इनका काम है to protect the internal organs, to line the body cavities, and to lubricate. Fine. So there are mainly two types of membranes present in human body. The first one is epithelial membrane, second is synovial membrane. So epithelial membrane is obviously made up of epithelial cells, and these cells are very tightly packed. So they are very strong in nature, and they work as protectors or barriers of our body. ठीक है, they do not allow the harmful substances to cross very easily. Fine. They are lined with the underlying connective tissues. Connective tissues का काम है to provide nutrition to the epithelial tissue and to provide support to them. There is also a basement membrane present here, which is a non-living membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम सिर्फ इनको बाइंड करना है विद द कनेक्टिव टिश्यू. फाइन. नाउ दे आर फॉर्म्ड ऑफ द शीट्स ऑफ epithelial tissue and supporting connective tissue. The internal structures and cavities are lined by the epithelial membranes. ठीक है, हमारे बॉडी के जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी कैविटीज हैं, दे आर लाइंड बाय दिस epithelial membrane. So there are two types of epithelial membranes. The first one is mucous membrane and the other one is serous membrane. The mucous membrane is mainly found in the alimentary tract, which is also known as digestive tract, the respiratory tract, and the genitourinary tract. Fine. So, the epithelial cells in the mucous membrane produce the mucus. ठीक है, this mucus helps to trap the harmful particles or germs so that they do not travel to the lungs or to the other body structures inside our body. ठीक है, these membranes are also found in the structures which are opening towards the outside. For example, mouth हो गया, the anus, the ईयर एक्सेट्रा. फाइन. जो भी चीज़ें ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बाहर की तरफ खुल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट है, ताकि इट हेल्प्स इन lubricating the structures, and they also prevent them from drying and injuries. ठीक है, they trap the inhaled particles so that they do not reach the alveoli of the lungs. Fine. Then we have serous membrane. Serous membrane जो है is a double layered loose connective tissue layer, which has the outer layer, which is parietal layer. This is facing towards the cavities of the body, and the other one is visceral layer. This visceral layer is facing towards the organs. ठीक है, ये जो नीचे वाला layer है, this is the visceral layer, the upper layer is the और the outer layer is the parietal layer. ठीक है, इन दोनों layers के बीच में there is serous fluid. इसका काम क्या है fluid का? To lubricate, and it helps the organs to glide freely. अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा, सो व्हाट विल हैपन इज, जब भी हम लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है, सो हमारे लंग्स जो एक्सपैंड होते हैं, देन दे कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन. अभी इसी फ्लूइड की वजह से दिस मूवमेंट इज हैपनिंग वेरी स्मूथली. अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा, सो व्हाट विल हैपन इज देयर वुड बी फ्रिक्शन कॉज्ड बिटवीन दी लंग्स एंड दी हार्ट, बिकॉज लंग्स के बीच में ही हार्ट प्रेजेंट है. ठीक है, सो इन दोनों के बीच में जो है फ्रिक्शन कॉज होगा, विच विल लीड टू डैमेज टू बोथ दी ऑर्गन्स. ठीक है, एंड अदर ऑर्गन्स जो है सराउंडिंग ऑर्गन्स, वो भी डिसरप्ट हो सकते हैं विद दी मूवमेंट. ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट to have the parietal layer, visceral layer, and this serous fluid in the body. Next we have synovial membrane. Synovial membrane जो है is present around the movable joints. ये movable joints कौन से होते हैं? Synovial joints. That is why it is known as synovial membrane. ठीक है, ये membrane जो है it consists of synovial fluid. ये fluid जो है it allows the movement to occur freely. ठीक है, अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा, सो व्हाट विल हैपन इज दोनों बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रब होकर फ्रिक्शन कॉज होगा, विच विल लीड टू डैमेज एंड disruption of the bones. Fine. Now they are also sometimes found around the tendons, for example in wrist. They consist of areolar connective tissue and elastic fibers. Elastic fibers जो हैं they provide flexibility to this membrane. ठीक है, and the synovial fluid secreted from this membrane, it lubricates the joints. Fine. Next we have is glands. Glands जो है they are the specialized structures
जिनका काम है टू प्रोड्यूस दी सर्टेन टाइप ऑफ secretion, ठीक है. They have specialized epithelial cells which produce the secretion, and they constitute the glandular epithelium, which is also known as glands, ठीक है. Now glands are classified into four different ways based on the number of cells present, the nature of their secretion, the pouring of their secretion, and the manner of secretion. Fine. So हम लोग एक एक को अभी डिटेल में पढ़ेंगे. The first one is unicellular cell. The unicellular cell is having just one cell present in the gland, ठीक है. ये एक ही सेल जो है वो secretion का काम कर रहा होता है इस gland में, ठीक है. यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है. सो कहीं भी तुम्हें ये वर्ड दिखे विच मीन्स वन, ठीक है. नाउ दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेक्रेटरी सेल्स, ठीक है. ये सेल जो है इट इज़ फाउंड बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है. कहीं भी तुम्हें एपिथेलियल सेल्स के बीच में ये एक सेल मिल जाएगा. ये इस एक सेल का काम है टू प्रोड्यूस द म्यूकस. ऑल्सो इसके पास कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है. सो इन इसका जो भी सिक्रीशन है दैट आर डायरेक्टली रिलीज्ड ऑन द एपिथेलियल सरफेस. फाइन. एंड दे आर ऑल्सो नोन एज इंट्रा एपिथेलियल ग्लैंड्स. इंट्रा एपिथेलियल ग्लैंड्स का मतलब है दैट दे आर फाउंड बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यूज. फाइन. इसका सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स, ठीक है. दे सिक्रीट म्यूकस फॉर द लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन. फाइन. दे आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट. The second type that we have is multicellular glands. मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड जो है नाम से पता चल रहा है. मल्टी मीन्स टू और मोर देन टू सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस, ठीक है. दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेक्रेटरी सेल्स. हाउ दे वर फॉर्म्ड? दे वर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. उस टाइम पे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एपिथेलियल सेल्स जो हैं they folded inward and they created the gland, ठीक है. Now these glands have the ducts to carry the secretion to the surface, and they are found most इन दी बॉडी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड सेबेकस ग्लैंड, ठीक है. अभी इसके स्ट्रक्चर में देर आर द डक्ट जो है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. द इंटरकैटेलेटेड डक्ट, द स्टेरिएटेड डक्ट एंड एक्सक्रीटरी डक्ट. इंटरकैटेलेटेड डक्ट जो है इट इज द नियरेस्ट टू द सेक्रेटरी सेल्स, ठीक है. ये सारे सेल्स जो हैं दिस आर द सेक्रेटरी सेल्स, और ये जो डक्ट है दिस इज नोन एज इंटरकैटेलेटेड डक्ट. देन कम्स द striated duct, it is the middle part of the duct. Then comes this excretory duct. Excretory duct जो है is the main part जहाँ से जो secretion है it moves towards the surface epithelium. Now जो secretory end pipe है इसको एडिनोमर भी बोलते हैं, ठीक है. and it is surrounded by the connective tissue which provides them the nutrition and the essential nourishment. Fine. The examples are sweat glands, mammary glands, salivary glands and sebecous gland. The sweat glands जो हैं इनका काम है to secrete sweat on the skin surface. Mammary glands secrete milk. Salivary glands secrete saliva into the oral cavity, whereas sebecous glands जो हैं they produce sebum in the hair follicles. ठीक है. हम लोगों ने यूनिसेल्युलर पढ़ लिया, मल्टीसेल्युलर पढ़ लिया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सिक्रीशन कौन से टाइप्स के ग्लैंड्स जो हैं. सबसे पहला इसके अंदर है म्यूकस सिक्रीशन, ठीक है. म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड, ठीक है. म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड नाम से पता चल रहा है कि इसका काम है टू सिक्रीट दी म्यूकस, ठीक है. ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं. अभी म्यूकस होता क्या है? म्यूकस जो है इज अ थिक स्लिपरी विस्कस सिक्रीशन, ठीक है. फ्लूइड टाइप का होता है ये, बट इट इज़ थिक इन नेचर, ठीक है. इट इज़ कम्पोज ऑफ म्यूकोपॉलिगोसेक्राइड्स, वाटर, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड आयंस, ठीक है. इसका मेन काम है ल्यूब्रिकेशन, प्रोटेक्शन एंड मॉइस्टनिंग दी inner surfaces or inner lining of the body. They are found in unicellular and multicellular forms. दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है. यूनिसेल्युलर भी होता है जिसके अंदर सिर्फ एक सेल है, मल्टीसेल्युलर भी होता है, ठीक है. फंक्शन इसका हम लोगों ने देख लिया. लुब्रिकेट एंड मॉइस्चराइजेस द एपिथेलियल सरफेस. दे प्रोटेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड इरिटेशन. दे ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रोब्स एंड हार्मफुल पार्टिकल्स ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर ना आ पाए, ठीक है. इट हेल्प्स इन ईजी पैसेज ऑफ फूड इन दी GI ट्रैक्ट, ठीक है. जो हमारा माउथ है देन कम्स द ईसोफेगस एंड देन द स्टमक, ठीक है. तो
इसोफेगस जो है वहाँ से हमारा खाना जो है अंदर आता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो इट कैन ट्रैवल इजीली because of this mucus which is present in the esophagus, ठीक है। it maintains the moist environment for the absorption, it is important for the absorption also, ठीक है। सिक्रेशन मोड जो है वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे बिकॉज सिक्रेशन मोड के भी 3 टाइप हैं। फाइन। So there can be unicellular, which are globulate cells. They can be multicellular, which are crypts of lubricant, and the multicellular compound, which are the sublingual glands. Fine. Second, we have serous gland. Serous gland का काम है that it is secreting the serous fluid. Serous fluid जो है it is thin, watery and clear secretion. But mucus जो था that was thick secretion, thick and viscous secretion. But this is thin, watery and clear secretion. It is highly rich in enzymes and protein. They also can be unicellular and multicellular, and they can be simple or compound. Fine. Simple and compound का मतलब है कि या तो सिर्फ एक डक्ट प्रेजेंट हो सकती है या फिर ब्रांच ब्रांच वाले डक्ट्स जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। एक से ज़्यादा डक्ट जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, इट इज़ कंपाउंड। सो इट कंटेन्स मेनली वाटर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ म्यूसिन। फाइन। देयर फंक्शन इज टू help in digestion, breaking down the food into smaller molecules, and they also help in fluid balance in the ducts and cavities. Lubrication तो हर एक ग्लैंड का काम है ही है, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन डिफेंस बिकॉज दे हैव एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज सच एज लाइसोसोम्स एंड लेक्टोफेरिन। फाइन। देन वी हैव द मिक्स्ड और सेरोम्यूकस ग्लैंड। सेरोम्यूकस ग्लैंड का मतलब है दैट दे आर ऑल्सो secreting the serous fluid and also the mucus, ठीक है। this is the combination of watery and um, mucus fluid. Fine. They can be again unicellular, multicellular. They have both the serous gland and mucus gland because दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। They have the duct present, ठीक है। mucus cells और serous cells दोनों present है इसके अंदर, the mucus cells and the serous cells दोनों present है, and they also have the connective tissue. connective tissue जो है हर एक में important है because epithelium टिश्यू जो है उनके पास खुद के पास कोई डक्ट नहीं है, सो ये न्यूट्रिशन जो है वो इसी कनेक्टिव टिश्यू के पास से लेते हैं। इनका फंक्शन क्या है? lubrication एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, अगेन द डाइजेशन, दे हेल्प्स द म्यूकोसा टू बी मॉइस्ट, एंड दे हेल्प इन ओरल हेल्थ एंड स्पीकिंग स्वैलोइंग में भी हेल्प करते हैं। फाइन। देन वी हैव वाटरी सिक्रीशन ग्लैंड्स। वाटरी सिक्रीशन ग्लैंड्स जो हैं दे आर थिन, क्लियर, वाटरी एंड ऑर्डरलेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट जो है इनिशियली इट इज ऑर्डरलेस बट it becomes orderful when the bacteria starts to build up on the body, ठीक है। they are mainly exocrine glands. exocrine glands का मतलब है that there is duct present on them. Fine. they are also known as pseudo They are also known as pseudoriferous glands. ठीक है, there is no enzyme or mucin present in them. The composition contains water, electrolytes, small amounts of urea, lactic acid, uric acid या फिर ammonia. There is no protein, no enzyme or no mucin present in this. Sweat glands का main काम क्या है? थर्मोरेगुलेशन करना, मतलब हमारी बॉडी को कूल करना बाय दी प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। जब भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, सॉल्ट या फिर यूरिया, कोई भी ये सारी चीज़ें जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाती है, सो हमारी बॉडी जो है उनको बाहर निकालती है थ्रू दी स्वेट, ठीक है। दे ऑल्सो मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, दे प्रोटेक्ट द स्किन, दे कीप द स्किन मॉइस्ट एंड दे हेल्प इन एसिड मेंटल ऑफ द स्किन, ठीक है। एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड हो गया, and they're found mainly in axilla, areola, anogenital region. Fine. Then we have waxy secretion glands. Waxy secretion gland नाम से पता चल रहा है कि कुछ तो वैक्सी सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो जो वैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं दैट इज सेरुमेन। सेरुमेन जो है इज नथिंग बट ईयर वैक्स। फाइन। दिस इज थिक, ऑयली एंड वैक्सी सब्सटेंस, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। एपोक्राइन क्या होता है दैट वी विल लर्न लेटर, ठीक है। इट lubricates एंड प्रोटेक्ट्स द ईयर कैनल। क्यों? बिकॉज ये थिक, ऑयली, वैक्सी और स्टिकी है, सो कोई भी सब्सटेंस जो है बाहर से अंदर हमारे ईयर में नहीं जा सकता, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, ठीक है। दे secrete the earwax and they
ओपन इनटू हेयर फॉलिकल्स ऑफ द ईयर कैनाल। ठीक है, फंक्शन क्या है, ल्यूब्रिकेट करना, ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, डर्ट, फॉरेन पार्टिकल्स, दे क्रिएट अ प्रोटेक्टिव बैरियर एंड prevent the injury and infection. They are also antimicrobial in nature. ठीक है, they are slightly acidic and has antibacterial substances. They prevent the dryness of the ear canal. It contains wax, which is the main component, fatty acids, squalene, dead epithelial cells, and small amount of water. Fine. Then we have fatty secretion glands. Fatty secretion glands जो हैं, they secrete the fatty substance which is known as sebum in the hair follicles. ठीक है, the secretion is oily, thick and lipid rich. That is why they prevent the skin from dryness and cracking. ठीक है, they keep our skin, help the skin to be soft and supple for both skin and hair. ठीक है, they provide the waterproof barrier because they are oily, has antibacterial activity. They also help in maintaining the skin surface. ठीक है, composition में क्या क्या है, triglycerides, waxes, squalene, cholesterol and cholesterol esters. There is small amount of free fatty acid present in them. ठीक है, it is associated with hair follicles. They are present throughout the skin except for the palm and soles because हमारे palms और sole में कोई hair follicles present नहीं है. ठीक है, they are more numerous on the face, scalp, chest and back. यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा present है. देन वी हैव सेल्यूलर सेक्रेटरी ग्लैंड. सेल्यूलर सेक्रेटरी ग्लैंड जो है एक ऐसा ग्लैंड है इन आवर बॉडी जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन करता है. ठीक है, एंडोक्राइन का मतलब है कि जो भी सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है. ठीक है, एक्सोक्राइन का मतलब है कि जो सिक्रीशन है वो एक डक्ट के थ्रू जा रहा होता है हमारी बॉडी में. ठीक है, सो इसका काम है टू प्रोड्यूस दी स्पेशलाइज्ड हॉर्मोन्स एंड दी गैमेट्स. ठीक है, ये एक ऐसा ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो पूरा एक सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेल्स के अंदर it produces sperms whereas in females it produces ova या फिर जिसको ovum भी बोलते हैं. ठीक है, it helps in growth and development of the reproductive function and also helps in reproductive function. They maintain the secondary sexual characteristics. They are essential for fertility and reproduction. ठीक है, now these cells produce the hormones like testosterone, estrogen and progesterone. Fine. गैमेट्स देख लिया हम लोगों ने, हॉर्मोन्स देख लिए क्या कौन से करते हैं. ठीक है, नाउ द सिक्रीशन इज सेल्यूलर इन नेचर. सेल्यूलर इन नेचर मतलब एक पूरा सेल जो है इज रिलीज्ड और सिक्रेटेड इन दिस. दे बोथ टाइप्स ऑफ सिक्रीशन ऑकर इन दी सेम ऑर्गन, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों जो एक सिंगल ऑर्गन में प्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर इट हैज़ स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी सेल्स विच आर अरेंज्ड इन कॉर्ड्स, क्लम्प्स और फॉलिकल्स. ठीक है, then there are delicate connective tissues present in this. They are rich in blood capillaries and they may be enclosed by a fibrous capsule, for example testes and ovaries. Fine. सो हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर देख लिया है एंड हम लोगों ने नेचर ऑफ सिक्रीशन के हिसाब से भी ये सारे ग्लैंड्स को देख लिया. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दी एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स. ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब इनका जो भी सिक्रेशन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो है वो जाता है. ठीक है, इनका मेन काम है टू सिक्रीट दी हॉर्मोन्स विच आर डायरेक्टली सिक्रीटेड इनटू द ब्लड या फिर लिम्फ. ठीक है, बिकॉज ये सारे जो ग्लैंड्स हैं वो एक साथ काफ़ी सारे ऑर्गन्स या फिर काफ़ी सारे फंक्शंस को हमारी बॉडी के अंदर एक साथ ट्रिगर कर रहे होते हैं. सो दे दैट इज़ वाई दे आर डक्टलेस बिकॉज डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाने से दे एक्ट वेरी फास्ट. ठीक है, दे रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शन एंड दे आर हाईली वस्कुलर इन नेचर. वस्कुलर का मतलब है दैट देयर आर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन दिस ग्लैंड्स. ठीक है, फंक्शन क्या है, रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दे मेंटेन द मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस. दे मेंटेन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम बैलेंस. They also maintain the blood sugar levels. They control reproduction and sexual characters. They also maintain homeostasis and internal environment. They coordinate
द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स एट वंस। ठीक है। कौन से टाइप्स के हॉर्मोन्स है अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर? देयर आर पेप्टाइड्स या फिर प्रोटीन हॉर्मोन्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। एडीएच है, जीएच है। स्टीरॉयड हॉर्मोन्स जैसे कि इस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है। एमिनो एसिड्स जैसे कि थायरोक्सिन, एड्रेनलिन। ठीक है। सो ये सारे हॉर्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है इनके? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रेनल कॉन्टेक्ट कॉर्टेक्स, पैराथायरॉयड, ओवरीज एंड टेस्टिस। ठीक है। सो दिस आर दी मेजर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब है दैट देयर इज अ डक्ट प्रेजेंट इन देम। ठीक है। सो जो भी सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है वो डक्ट के थ्रू एपिथेलियल सरफेस पे जाएगा या फिर इनटू द बॉडी कैविटीज के अंदर जाता है। ठीक है। दे डू नॉट रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। ठीक है। इनका काम है टॉपिकल एक्शन करना, मतलब लोकल इफेक्ट होता है। वेरस जो हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड देखा उसके अंदर एक साथ काफ़ी सारे बॉडी ऑर्गन्स पे जो वो हॉर्मोन्स है वो काम करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ लोकल इफेक्ट जो है वो होता है। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द ग्लैंड्स इन दी बॉडी आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी, सिबेकस, मेमरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स। ये सारे जो है एक्सोक्राइन पार्ट है। ठीक है। सो देर कैन बी सिंपल जहाँ पे सिंगल डक्ट प्रेजेंट होती है, दे कैन बी कंपाउंड जहाँ पे ब्रांच डक्ट होती है, दे कैन बी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ठीक है। फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द बॉडी सरफेस, lubricate and reduce the friction, aid in digestion, maintain the temperature, excrete the waste and toxins, provide antimicrobial action, and they nourish and protect the body. फाइन। एग्जाम्पल्स क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस सलाइवा। फंक्शन क्या है? lubrication, digestion and cleaning. Sweat glands produces sweat. Sebaceous glands produces sebum. Mammary glands produces milk. Lacrimal glands produces tear, which helps in lubrication, protection and antimicrobial activity of the eyes. ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस जैसे कि HCl, पेप्सिन, म्यूकस। ठीक है। दे हेल्प्स इन डाइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फाइन। पेनक्रिया प्रोड्यूस करते हैं पेनक्रियाटिक जूस जिसके अंदर एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेज द एसिड विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक। ठीक है। देन देर इज लीवर विच इज ऑल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड। इट प्रोड्यूसेस बाइल। ठीक है, विच हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है। नाउ वी हैव मिक्स्ड ग्लैंड्स विच इज़ थर्ड टाइप ऑफ दिस कैटेगरी। ठीक है। मिक्स्ड ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स हैं जिसके अंदर दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कंपोनेंट्स हैं। दे परफॉर्म द ड्यूअल फंक्शन। ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो सब्सटेंस को थ्रू द डक्ट जो है सरफेस पे भेजता है, वेरएज एंडोक्राइन पार्ट जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है जो भी सिक्रीशन हुआ है वो। ठीक है। दे आर फाउंड इन लिमिटेड नंबर्स इन दी बॉडी। फाइन। एग्जाम्पल क्या है? पेनक्रियास। ठीक है। पेनक्रिया का एक्सोक्राइन पार्ट जो है दैट इज पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, जो डक्ट के थ्रू जाता है बॉडी के अंदर। वेरेज एंडोक्राइन पार्ट जो है वो रिलीज करता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेइन स्टेइन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। फाइन। देन देर आर टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, जिसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट क्या है? गैमेट्स। ठीक है, स्पर्म्स एंड ओवा। वेरेज एंडोक्राइन पार्ट क्या है? सेक्स हॉर्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। फंक्शन अगेन दे एड इन डाइजेशन, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, हार्मोन बैलेंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड दे सपोर्ट इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड होम्योस्टेसिस। फाइन। Now, there are the three types of glands according or on the basis of the mode of secretion. ठीक है, वो कैसे सिक्रीट कर रहे हैं हॉर्मोन्स या फिर जो भी प्रोडक्ट हैं उनका। सो द फर्स्ट वन इज मेरोक्राइन ग्लैंड्स। जो मेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो जो भी सिक्रीशन है उसको रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस जहाँ पे कोई भी सेल का कंटेंट जो है दैट इज नॉट लॉस्ट। ठीक है। इसके अंदर सिर्फ सिक्रेटरी प्रोडक्ट जो है दैट इज रिलीज्ड आउटसाइड, देयर इज नो लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। सेल जो है इट रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब कोई भी सेल का लॉस्ट नहीं होता है। ठीक है। सेल ना डिजनरेट होता है ना कुछ।
दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्रीशन. इट इज कंटिन्यूस सिक्रीशन. इट इज ऑल्सो नॉन एज एक्राइन सिक्रीशन. ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स जो है दे आर फॉर्म्ड इन द सेल्स. ठीक है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये ग्रेन्यूल्स हैं. ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल. देन ये जो ग्रेन्यूल्स हैं दे मूव टुवर्ड्स द अपाइकल पोर्शन. अपाइकल मेम्ब्रेन या फिर अपाइकल पोर्शन जो है इट इज द टॉप पोर्शन. ठीक है, देन यहाँ से जो है ग्रेन्यूल्स फ्यूज होते हैं विद द मेम्ब्रेन एंड दे आर रिलीज्ड. ठीक है, यहाँ से पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं. यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है जहाँ से ये सिक्रीशन जो है दे आर रिलीज्ड एंड देयर इज नो साइटोप्लाज्म लॉस्ट. ना सेल डिजनरेट होता है इसके अंदर. ठीक है, देयर इज नो मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक लॉस. ठीक है, द secretory वेसिकल फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द रिलीज ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन्स, म्यूकस, सेरस फ्लूइड, स्वेट एक्सेट्रा ये सब जो है इजी प्रोसेस के थ्रू होता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, स्वेट ग्लैंड्स, लेक्रिमल ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है ऑफ द मेरोग्रैन ग्लैंड्स. ठीक है, इसके अंदर टाइप ऑफ सिक्रीशन क्या क्या है, सेरस, म्यूकस, मिक्स्ड विच इज सेरस एंड म्यूकस, एंड वाटरी. ये सारा सिक्रीशन जो है वो विद द प्रोसेस ऑफ मेरोकाइन होता है. ठीक है, देन वी हैव दी एपोक्राइन. ठीक है, एपोक्राइन के अंदर क्या हो रहा होता है कि जो सिक्रीशन है दैट इज released with some cytoplasm in it. ठीक है, there is a loss of cytoplasm and cell organelles in this. ठीक है, सेल जो है वो partially destroy हो जाता है during the secretion and the secretion जो है it is viscous and rich in proteins and lipids. They are stimulated by hormones, emotions and the stress. ठीक है, प्रोसेस क्या है इसकी कि जो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हैं दे आर फॉर्म्ड इन दी सेल्स जस्ट लाइक दे वर इन दी प्रीवियस वन. देन apical cytoplasm जो है that bulges out. Apical cytoplasm this bulges out. Then the portion pinches off. ये bulge होके it is pinched off and then it is released. So इस रिलीज के अंदर जो है कुछ साइटोप्लाज्म और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो है दे आर ऑल्सो रिलीज्ड. सो देर इज लॉस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स. फंक्शन क्या है, टू सिक्रीट द थिक विस्कस मिल्की प्रोटीन रिच फ्लूइड. ठीक है, दे कंटेन प्रोटीन, लिपिड, फेरोमोन्स एंड सेल्यूलर डेब्रिस. दे आर ऑर्डरलेस when secreted but becomes odorous after the bacterial breakdown. They lubricate the skin, they play role in body odor. They may convey social and sexual signals. They are important for stress response. Fine. Examples क्या है, apocrine sweat glands which are present in axilla, areola and anogenital region. They are also present in ear canal, in the mammary gland and the modified hair follicles which are present in some animals. Fine. The last one we have Holocene glands. The Holocene glands are released by the holocrine secretion. Holocrine secretion के अंदर क्या हो रहा है कि जो granules हैं they accumulate and cell जो है then it matures. जब ये पूरा भर जाता है with the secretion then the entire cell जो है it breaks down and releases the secretion. Then new cells जो है वो they are formed from the basal cells to replace the lost cells. ठीक है, basal cells कौन सा होता है जी, जो ये बॉटम पार्ट है उसको बेजल सेल्स बोलते हैं. ठीक है, यहाँ से वापस से जो है न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं टू रिप्लेस दी लॉस्ट सेल्स. ठीक है, इसके अंदर देर इज नो रेसिड्यूल सेल लेफ्ट आफ्टर द सिक्रेशन. ठीक है, वापस से नया सेल बनता है. फाइन. एंटायर सेल जो है सिक्रेटेड एंड लॉस्ट. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सारी चीज़ें जो है वो रिलीज हो जाती हैं इसके अंदर. सेल इज कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय दी बेजल सेल्स. फाइन. सिक्रीशन इसके अंदर भी थिक होता है, ऑयली होता है एंड पेस्टी. ठीक है, दिस इज लेस कॉमन टाइप ऑफ सिक्रीशन. एग्जाम्पल क्या है, सिबेशियस या फिर ऑयल ग्लैंड्स इन द स्किन. ठीक है, मेबोबियन ग्लैंड्स ऑफ द आईलिड्स. ठीक है, इन द ईयर वैक्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द एरियोला. ठीक है, मोंटगोमेरी ग्लैंड्स. दिस आर द एग्जाम्पल्स. सिक्रीशन जो है इज सीबम, वैक्सी एंड पेस्ट्री. They are rich in lipids, fatty acids, cholesterol and
keratin. They lubricate and softens the skin and hair. They are waterproof in nature. They protect against the dryness and cracking. They also possess antibacterial properties. They form the waxy barrier in the external openings, for example, ear canal and eyelids. ठीक है. सो लेट अस क्विकली रिवाइज कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. हम लोगों ने देखा कि मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं. ठीक है, दो टाइप्स के मेम्ब्रेन्स होते हैं, एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन. एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर फर्दर टू टाइप्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सेरस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन जो है दे आर मेनली फाउंड इन एलिमेंट्री कैनल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट. इसका काम है म्यूकस प्रोड्यूस करना, विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग द इनहेल्ड पार्टिकल्स and to prevent the particles entering the alveoli of the lungs. Then we saw serous membrane. Serous membrane is double layered membrane which has serous fluid in it. This fluid helps the organs to glide freely and they prevent damage by the friction. Then we saw synovial fluid. Synovial membrane. Synovial membrane is found in movable joints which are also known as synovial joints. Okay. They contain synovial fluid. The synovial fluid helps in lubrication of the joints and they help in the movement of the joints. Fine. Then हमने देखा classification of the glands. Classification of the gland is via four types जिसके अंदर it is based on the number of constituting cells according to the nature of secretion, the mode of pouring and the manner of secretion. ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा यूनिसेल्युलर ग्लैंड. यूनिसेल्युलर ग्लैंड जो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल ग्लैंड. मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स. ठीक है. The mucus secreting glands such as goblet cells and sublingual salivary glands. Mucus secreting glands जो हैं they produce mucus. The serous secreting glands जो हैं they produce serous. The mixed one produce both mucus and serous. Then there is watery secretion जहाँ पे sweat जो है it is produced. Waxy secretion के अंदर ear wax is produced. Fatty secretions के अंदर there is sebaceous gland जहाँ पे the sebum is produced and there is cellulary secretory gland जहाँ पे the sperms and ovaries are produced. ठीक है. Then we saw according to the pouring method, then they contain endocrine, exocrine and mixed glands. ठीक है. endocrine are ductless glands जहाँ पे directly blood के अंदर secretion जो है is poured and in exocrine the secretion travels through the duct present in the gland. Then there is mixed जहाँ पे दोनों exocrine and endocrine जो है दोनों present है. दी मैनर ऑफ सिक्रीशन के अंदर भी सो मेरोक्राइन जहाँ पे कोई भी साइटोप्लाज्म या फिर कोई भी सेल का स्ट्रक्चर जो है इज़ नॉट लॉस्ट. देन वी सो एपोक्राइन. एपोक्राइन के अंदर जो है दी सम पोर्शन ऑफ सेल इज लॉस्ट. ठीक है, विच इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड सम सेल ऑर्गेनल्स. whereas in holocrine entire cell is discharged with the secretion and then the new cells are formed with the basal cells. ठीक है. So that's all for today's lecture. I hope you liked it.